सो अथॉरिटीज़ को पावर कहाँ से मिलती है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, दूसरी लोगों की पावर है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ऑफिसर हो। आई थिंक दे आर डिस्ट्रैक्टेड, दे आर नाइस पीपल, दे आर ऑल्सो वेटिंग टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। दिस इज हाउ एंड आई वीव गॉन थ्रू दिस एंड you have to believe in the you have to believe in the essential goodness of man. Woof woof. Welcome to GanaCast. Today I'm speaking to Swami Prem Parivartan, famously known as People Baba. At birth he was given the name Azad Jain, but as he started teaching yoga and meditation and living in an ashram in Pune, his spiritual teacher gave him the name Swami Prem Parivartan. He is an environmentalist who, along with his team, has planted over 20 million trees in 202 districts across 18 states in India. He also spreads his passion for planting trees through social media, where he has a large following. We caught up with him on his recent visit to Kanha Shantivanam. नमस्कार. नमस्कार. It's so nice to have you here at Kanha. It's an absolute honor. आप किस नाम से you prefer to be addressed, sir? क्योंकि परिवर्तन. परिवर्तन. परिवर्तन is my name. Parivartan is my legal name, so Parivartan would be nice. And Parivartan is exactly what you're doing also, so I think that suits you so well. हाँ जी. So आप कल से कान्हा में हैं and you've had a tour of the place and things like that. तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, what did you think of the entire campus? सर हम लोग 46 ईयर से यही लोगों को समझाते हैं कि लव एंड स्पिरिचुअलिटी से ही आप परमानेंट ग्रीन्स क्रिएट कर सकते हैं, लव एंड स्पिरिचुअलिटी से ही आप ग्रीन स्पेसेस में रौनक ला सकते हैं, लव एंड स्पिरिचुअलिटी से ही बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। ये कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं होता या कोई लॉजिक का, सिर्फ साइंस से नहीं होता। साइंस से आपको फैक्ट्स पता चल सकते हैं, लेकिन व्हेन यू क्रिएट मैजिक दैट हैज़ टू बी डन। इट्स ठीक है, लोग सोचेंगे इsoteric वर्ल्ड है, वो है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट जब तक लव एंड स्पिरिचुअलिटी का पोर्शन इंटेंशन के साथ आप ज़मीन में नहीं डालते, यू कांट क्रिएट। एंड कान्हा इज़ एविडेंस ऑफ दैट, कान्हा इज़ एविडेंस ऑफ दैट। जो हमें थोड़ी बहुत समझ आई यहाँ पर कि 2015 के बाद जो यहाँ पर काम हुआ है, आई थिंक दिस इज़ मैजिक। यू नो, पीपल गो to many lengths to find people where, you know, who can create a miracle. I will tell everybody, come to Kanha. You know, Wow. This is where the miracle has taken place, and it's not an easy thing because I work on the field. I'm a field person. 46 years we have created forest. It is not at all easy to एक barren patch of land जो water stressed area है, वहाँ पर आप इस तरह का magic create कर सकें. That's high praise, sir, coming from you, क्योंकि आपने तो इतना देखा है. You've been working in the field for so long, and you also had a meeting with legendary Dr. Ramakanta. Yes. How was that? Iconic. How was your? Oh yes, you know, forest officers से तो बहुत मिलते हैं. You know, people who have done their doctoral thesis in this field and people who are experts, subject matter experts. लेकिन you know, with people from the forest field, लेकिन with the heart, you know, उनका laughter, उनकी understanding, उनका wisdom, and of course it's all दिखता है कि there is a spiritual master behind it, you know, so that is very important. and आप कोई भी ये काम कर ही नहीं सकते. हम भी जो हैं गुरुकुल के पढ़े हैं, हमारे भी गुरुजी रहे हैं, आचार्य जी रहे हैं पहले, अब तो वो नहीं रहे शरीर में, तो उनके बिना आप नहीं कर सकते. सो डॉक्टर रमाकांत इज़ एन एग्जाम्पल वेयर यू नो, बीइंग इन द फॉरेस्ट सर्विसेज एंड CCF रहने के बाद कर्नाटका में, एंड फॉरेस्ट एकेडमी के हेड रहने के बाद, and then still coming here, and very lovingly he was sharing, and I really liked my takeaway for the in 4 hours of his our togetherness was that he said ke, you know, as a forest man I thought it cannot happen because this is not the way it is done, but when Daji instructed him that at least give it a try, let's do it, and it happened, you know. So and this is exactly what our experience has been, you know,
कि मिट्टी की जिद से ज़्यादा, ज़मीन की जिद से ज़्यादा हमारी जिद भी मैटर करती है। Wow. Well, a lot of young people are quite disappointed. They have this prejudice against government officers and like forest service officers. Okay, these guys are all corrupt and these guys are all just making money. But that is not the case. You must have come across so many people also in our services who are really passionate and devoted to their jobs. So, is that a misconception that is not well founded? I think I will look at it I be trained and programmed by my elders, my grandmother, to look at things in a very different way. So she would say that if things are not happening by, they are the authorities and the government officials, so-called, they are not doing the thing, that is the reason that you should do it. That becomes the reason that you have to do it. And when you do it, there is no way they will not do it. Because they will have to support you at some point of the time. Because when the citizens come together, when mobilization takes place, when communities come together, the सबसे ज़्यादा जो लॉबी है, सबसे ज़्यादा पावर, वो पीपल पावर है, पीपल प्रेशर है. सो अथॉरिटीज़ को पावर कहाँ से मिलती है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, दूसरी लोगों की पावर है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ऑफिसर हो. एंड you have to believe in the essential goodness of man. I think they are distracted. They are nice people. They are also waiting to do something good in life. लेकिन उनको मौका नहीं मिला. This is how we've gone through this कि 10-10 साल तक सपोज कोई अथॉरिटी आपको सपोर्ट नहीं करती, पर लेकिन 11th ईयर में वही है जो आपके पीछे आके खड़ी हो जाती है. आप करो, हम आपके साथ हैं. सो यहाँ पर जो मैं उसको 360 डिग्री एंगल पे यूं देखता हूँ, और हम अपने टीम मेंबर्स को भी, हम अपनी कम्युनिटीज़ को जो हमारे साथ काम करते हैं, हम सबको कहते हैं आप ठीक रहो. अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, यू आर गुड, एवरीबडी इज गुड. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. आप अपना ठीक रखिए, आप अपना काम और हार्डवर्क रखिए. बाकी छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, विद टाइम दे विल ऑल डिसॉल्व एंड पीपल विल कम एंड स्टैंड बिहाइंड यू. मतलब इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्सल ट्रूथ, यू कैन डू एनीथिंग. सो यू डोंट हैव टू वरी कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, अथॉरिटीज़ नहीं कर रहे. उनको लविंगली कीप नजिंग देम कि सर प्लीज़ हमारे को थोड़ा सपोर्ट कर दें, या जो भी है, वट एवर इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट. देखिए, अगर नहीं होता है तो काम नहीं रुकना चाहिए, काम होते रहना चाहिए. एंड 100% केसेस में हमने देखा है, नॉट 99 सर, 100% केसेस में देखा है, देर सवेर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो भी आके सामने खड़े हो जाते हैं. Amazing. So that old saying of be the change you want to see. Yes. Amazing. तो आई नो दैट 11 साल की उम्र में आपने पहली बार पौधे लगाए थे. जी सर. एंड हाउ डिड दैट इंस्पिरेशन स्ट्राइक यू? आई मीन यू ग्रू अप इन चंडीगढ़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. चंडीगढ़, आई वाज बोर्न इन चंडीगढ़. जी. फिर हम डलहौजी रहे, फिर हम देहरादून रहे, एंड दिस हैपेंड इन किरकी, इन पुणे. हाँ, पुणे के बाहर एक किरकी मिलिट्री स्टेशन है. माय फादर वाज पोस्टेड इन किरकी मिलिट्री स्टेशन, मिलिट्री हॉस्पिटल. एंड वहाँ पर मैं एक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पर स्पाइसेस एलिमेंट्री स्कूल, इट इज़ अ प्राइमरी स्कूल. हमारी एक टीचर थी मिस विलियम्स. सो शी यूज्ड टू टॉक अबाउट बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज अ लॉट. तो 2 साल वो हमारी क्लास टीचर थी, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में. तो वो जो 2 साल थे, इट मेड व्हाट आई एम टुडे. वाओ, मिसेस विलियम्स. नंबर 1. नंबर 2, जब हम शाम को घर आते थे तो सोने पर सुहागा होता था, बिकॉज हमारी ग्रैंड मदर थी, और वो पूछती थी बेटा टीचर ने क्या पढ़ाया. तो हम कहते थे मैम ने ये चीज़ें कहीं. उन्होंने कहा बटरफ्लाइज के लिए काम करो, उन्होंने कहा बीज के लिए काम करो, उन्होंने कहा बर्ड्स के लिए काम करो. कोई उनके लिए तो कोई काम नहीं करता है ना. डॉक्टर इंजीनियर तो कोई भी बन सकता है, अगर तुम थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, थोड़े से आपके रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो कभी ना कभी तो डॉक्टर इंजीनियर बन ही जाओगे 1-2 अटैम्प्ट्स के बाद. सीए बन सकते हो, एमबीए बन सकते हो, लेकिन फुल टाइम काम करने वाला बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज के साथ कोई नहीं है. अगर कोई होगा भी तो वो सैलरी पे होता है, और सैलरी वाला सैलरी की तरफ देखता है ना.
तो वो चीज़ दिमाग में बैठ गई। फिर वो जब नानी को बोलते थे तो वो कहती बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो एक तो सुबह स्ट्रेंथनिंग होती थी और शाम को जब आके नानी से शेयरिंग करते थे कि मैम ऐसे कहती हैं, तो सुपर स्ट्रेंथनिंग हो जाती थी उस बात की। तो वो Reinforce हो एक रीइंफोर्समेंट हो गई कि यही करना Wow. है ना। एंड फादर आर्मी में डॉक्टर थे, सो ही वांटेड कि मैं यहाँ तो डॉक्टर बनूँ या आर्मी ऑफिसर बनूँ, पर उन्होंने देखा कि धीरे धीरे ये तो किसी और ही रास्ते वो है। ऑफ कोर्स ही डिडंट लाइक इट, बट उन्होंने कभी अपोज भी नहीं किया। मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया एंड बस सब एल्डर्स के आशीर्वाद से। एंड देन हम गुरुकुल में पढ़ने जब गए तो वहाँ पर भी हमारे एक आचार्य जी थे और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। Wow. और बस गुरुजन ने एक ही बात समझाई कि जैसे कहते हैं कि एक चीज़ मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है कि आई रियलाइज दैट, मैं अपने टीम मेंबर्स को भी बोलता हूँ दैट यू आर वेरी लकी टू बी वर्किंग फॉर ट्रीज एंड यू आर वेरी लकी टू बी वर्किंग फॉर बायोडाइवर्सिटी, फॉर वाटर, फॉर मेकिंग पॉन्ड्स एंड फॉर क्रिएटिंग ग्रीन स्पेसेस एंड ऑल दैट, क्योंकि इट इज़ नेचर विच चूजेज इट्स टीम। प्रकृति ही चुनती है किससे काम करवाना है। तुम ये मत सोचो कि तुमने सोचा चुना है, हाँ। तो तुम कर लोगे, हो ही नहीं सकता। अगर वो चाहेगी और वो चुनती है, इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, वो अपनी टीम चुनती है। सो एक चीज़ की बहुत क्लैरिटी आई कि एक बार हमारे गुरुजी थे कोई, तो उन्होंने एक बात बहुत प्यार से कही कि बेटा कभी अहंकार मत करना कि तुम पीपल लगाते हो। वाह। वो कोई पीपल के कॉन्टेक्स्ट में बात जी हो जी रही जी थी। जी। कहते पीपल ने तुमको चुना है Wow. अपना काम करने के लिए। That's so तो beautiful. हमेशा हम्बल रहना और कभी ये मत सोचना कि तुम लगा रहे हो, तुम लगा ही नहीं सकते, तुम एक पौधा भी नहीं लगा सकते। अगर That's so उन्होंने beautiful. चुना है, उन्होंने, सो ये तुम्हारी डेस्टिनी है और इसको बाखूबी करो, अपने अंतिम श्वास तक यही काम करना। सो That's- एक बार वो वाली लर्निंग्स होती हैं, उस तरह का आपका संस्कार होता है। और हम अपनी टीम्स को भी, कम्युनिटीज़ को भी, मासेस को भी यही समझाते हैं कि अगर परमात्मा ने तुम्हें चुना है, प्रकृति ने तुम्हें चुना है, तो उसको रिस्पेक्ट करो उस चीज़ की, एंड डू योर बेस्ट। That is so amazing. That's such a beautiful and very, teachers, आज की दुनिया में खास तौर पे, it's very hard working teachers and they feel like it's a thankless job. But you are shaping so many lives. आपने कहा classes 3 and 4 Mrs. Williams taught you. Yes, yes. And she set the course for the rest of your life in a way. Yes, yes. So how important that teacher's role is in a person's life, one can be seen. सर हमारा पूरा जो काम है वो 2 वर्टिकल्स में है। एक तो है प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस, उसको आप बायोडाइवर्सिटी क्रिएशन कह लीजिए, ग्रीन स्पेसेस मैनेजमेंट कह लीजिए, कुछ भी करें। दूसरा एक बहुत बड़ा वर्टिकल है जो हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उतना नहीं बोलते उस चीज़ के बारे में, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी टीम जो है वो ये काम कर रही है, दैट इज़ एजुकेशन। हम 2nd से लेके 8th तक के जो बच्चे प्राइमरी, हम उनको प्राइमरी सेक्शंस बोलते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं। क्योंकि सर अगर आपने बच्चे को तैयार कर दिया, मैं तो खुद उसका एग्जाम्पल हूँ, सो एनीबडी सेइंग कि ऐसे नहीं होता, तो मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अगर हमारे को मिसेस विलियम्स नहीं मिली होती तो शायद मैं भी कहीं आर्मी में काम कर रहा होता, मैं भी कहीं मेडिकल लाइन में, जैसे फादर कहते थे वैसे कर रहा था। नेशन इज बिल्ड बाय टीचर्स ओनली। और आपकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सर वो 8th ग्रेड तक होते हैं। 9, 10th, 11th, 12th में आप फिर मेडिकल में जाना है, आईआईटी में जाना है, फिटजी में जाना है, बाईजूस जाना है, फिर आपको वो कोई लैपटॉप दे देगा, आपको कोई स्मार्टफोन दे देगा, करेक्ट, आप गए काम से, ठीक है। तो आपके पास 8th तक का जो बच्चा है वो रॉ मटेरियल है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है। आप उसके ऊपर कितना, आप एनवायरमेंटल साइंसेस में, आप किचन गार्डनिंग से लेके नेचर लव, नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर आप जितना सिखा सकते हो बच्चे को आप सिखाइए। पॉलिनेटर्स के बारे में सिखाइए, बर्ड्स के बारे में सिखाइए, उसको सॉइल के बारे में सिखाइए, उसको पानी के बारे में सिखाइए, उसे रिवर सिस्टम्स के बारे में सिखाइए, उसको पूरा इकोसिस्टम्स के बारे में सिखाइए। क्योंकि अगर वो बच्चा समझ गया तो सर एक चीज़ याद रखिए, वही फ्यूचर आपका पॉलिसी मेकर है, वही पॉलिटिशियन है,
वही डॉक्टर है, वही इंजीनियर है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो कुछ भी लाइवलीहुड करेगा, वो कुछ भी बनेगा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, बिलियनर बन जाए, मिलियनर बन जाए, कुछ भी है, लेकिन वो अपने संस्कार नहीं भूलेगा कि मेरे को 8th ग्रेड से पहले पहले मुझे सिखाया गया है कि मुझे किस तरह से आजकल के लैंग्वेज में सस्टेनेबल लिविंग किस तरह से करनी है, क्या मुझे अपने किस तरह से अपने ग्रीन्स की रक्षा करनी है, किस तरह से मुझे एक चींटी को भी रिस्पेक्ट दिखाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये कहना कि एक कोई छोटी सी संस्था है, उसने ये काम कर लिया, सर वो टाइम निकल गया है। जी जी देर इज़ नो यू टर्न। मेरा फर्मली ये बिलीफ है, मेरे फील्ड एक्सपीरियंस से, हमारा जो लास्ट थ्रेशोल्ड था वो 2010 था, 2010। If we would have done it the normal way by 2010, it would have been okay. Now, like people say, each one plant one, I say every day plant one. वो टाइम गया। Desperate times call for 2010 desperate measures. Exactly. 2010 के बाद you are witness to it, the whole world is witness to it. जिस तरह से वाइल्ड फायर्स आए हैं, जिस तरह क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं। Absolutely. Just yesterday I was reading in a daily leading newspaper कि किस तरह से उन्होंने 10 साल का पूरा मैप दिखाया था, 2010 से लेके 2023 तक का। तो जिस तरह से बॉइलिंग हॉट टेम्परेचर्स आ रहे हैं, जिस तरह आप पोर्चुगल देखिए, स्पेन देखिए, ग्लोबली देखिए, Hawaii, there's wildfires. you know the way, मतलब I have no words for it. You know, everybody who's listening to us, everybody knows what is happening in the world. But if we think हम चार दीवारी में बैठ के, you know, it's like वो पिजन जो आंख बंद कर लेता है, वो सोचता है बिल्ली मुझे मारेगी नहीं, है ना। सो वी आर क्लोजिंग आवर आइज टू मैनी थिंग्स। सो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्पॉइल द नैरेटिव, डोंट क्रिएट, डर फैलाने की बात नहीं है, क्योंकि डर से कभी कोई काम नहीं होता, है ना। वो सिर्फ ऐड में ही अच्छा लगता है, डर के आगे जीत है, लेकिन डर से कोई काम नहीं होता है। सो एक विश्वास से काम होता है, प्यार से काम होता है। सो आई थिंक दैट एवरी सिटीजन हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द गेम नाउ। वो ज़माना चला गया कि गवर्नमेंट ने ये करा, अथॉरिटी ने करा, हॉर्टिकल्चर ने करा, फॉरेस्ट ने करा, डिपार्टमेंट्स ने करा। नो सर, नो, वो तो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। अब हर इंसान को करना है। आज हम जैसे कान्हा का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो मैं देख रहा था पिछले 2.5 दिन में, आई बीन हियर फॉर 2.5 days। सो एवरी हार्टफुलनेस जो मेंबर है, जितने भी यहाँ मेडिटेटर्स हैं, सब they have that natural thing for environment, you know. It of course the source is the master, but then this is what is required of the entire country. Now you can see this, आप Scandinavian countries में जाइए, I've traveled quite a few countries, तो आप जर्मनी चले जाइए, आप नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आप देखेंगे वहाँ सिटीजन्स कैसे देखते हैं। I was stunned, you know, in Netherlands, you know, the Prime Minister, we had a chance meeting with him and he was on a cycle. Wow, yeah. You know, so वो मैं कहता हूँ citizen movement. So the future is citizen movement. The future is community. The future is mobilization. The future is एक छोटे से बच्चे को पकड़िए, वहीं से आप बिल्डिंग ब्लॉक्स में संस्कार डालने शुरू कीजिए। You know, वो ज़माना गया कि आप एक कॉन्फ्रेंस कर लेंगे क्लाइमेट एक्शन पे, आप समिट कर लेंगे, आप कोई वर्कशॉप कर लेंगे, सो आप सोचेंगे उससे कोई ज़मीनी हकीकत में तब्दील कुछ चेंजेस आएंगे। नहीं आएगा सर, लेट्स नॉट। देखो, एक होता है दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, एक होता है अपने आप को बेवकूफ़ बनाना, है ना। लेट्स नॉट गेट इनटू इट, लेट्स वेक अप। So true. एंड इट्स वेरी सिंपल। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ समझ चाहिए, एंड यू नीड द राइट रोल मॉडल्स, यू नीड द राइट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स हु गोड यू इनटू इट, हु नज यू इनटू इट। एंड आई थिंक इंडिया इज वेरी लकी दैट वी आर अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स। और गुरुजन ही ये रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि दे हैव दैट लव, डिवोशन, फॉलोइंग, कि अगर वो कहेंगे लोग करेंगे, लोग करेंगे, डेफिनेटली होगा। सो जस्ट टू समराइज द होल थिंग, सो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ये सिर्फ ये कहना कि डिपार्टमेंट्स कर लेंगे,
वो पॉलिसी बना सकते हैं, वो आपको एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं, True. वो आपको एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, वो कहेंगे हाँ आप ऐसे मत कीजिए वैसे मत कीजिए, बट जो करने वाले हैं सर वो तो सिटीजन्स ही हैं. सो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द इंडिविजुअल नाउ. जैसे हार्टफुलनेस में भी हम एक इंडिविजुअल उसकी बात करते हैं कि अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है. करेक्ट. सो सेम वे एनवायरनमेंट पे, इकोसिस्टम्स पे भी है. ज़मीनी हालत यही है कि अगर आप इंडिविजुअली आप उसको ट्रेन कर दीजिए, इंडिविजुअली उसको इक्विप कर दीजिए, उसको एम्पावर कर दीजिए, वो अपने आप सब ठीक कर लेगा. दैट्स सो ट्रू. जैसे आपने कहा एजुकेशन में इज द मेजर पोर्शन ऑफ योर वर्क इज एजुकेशन. Yes, आपकी टीम yes, एजुकेशन में yes. इंटरवीन कर रही है. हम्म, जैसे आई हैव ग्रोन अप इन नैनीताल, जी. very nice place, and you're very close to nature. I mean, in 10 minutes from your house, you are in thick forest. But a lot of kids today are growing up in concrete jungles. They don't have that access. So how can we sensitize people to nature in places which have no access to forests, to natural locations like that? So very important that we have to create a system जहाँ पर एक इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट जहाँ हम अपने टीचर्स और पेरेंट्स को ट्रेन कर सकें. हम्म. एक तो हो गया बच्चों को जी, तो जी. प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस करके बच्चों को आप तैयार कीजिए. टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं हो रही और पेरेंट्स की ट्रेनिंग नहीं हो. पेरेंट्स की तो काउंसलिंग हो ही नहीं रही. True. पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी जो होती है तो टीचर पेरेंट को बुला के सिर्फ कहता है कि हाँ जी मैथ्स में इतने उसके नंबर आए, वो है, So true. वो ठीक से वो नहीं करता, फिजिट बहुत करता है, हाइपर एक्टिव बच्चा है आपका, ऐसी ऐसी चीज़ें बात होती हैं. अगर आप पेरेंट को, मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, हम्म. पहले तो आप पेरेंट को तैयार कीजिए. अगर वो ठीक है और उधर से बच्चे को एक डिफरेंट इकोसिस्टम में तैयार कीजिए और पेरेंट्स की काउंसलिंग. सो गवर्नमेंट को कुछ इस तरह का एजुकेशनल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा. कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हों जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी हो, प्रैक्टिकल वो भी हो, और पेरेंट्स को, एल्डर्स को, पेरेंट्स को तैयार करो ताकि वो अगर बच्चा कोई अच्छा काम करना चाहे तो उसको वो रोके ना, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारी जो टीचर्स हैं, अगर जैसे इफ़ आई हैड माई वे सर, मैं अपना सारा पैसा अपने देश का, सपोज आई वॉज हेडिंग अ कंट्री फॉर सम maybe 4 weeks or 5 weeks, I would put the entire budget on training my teachers. So true. टीचर ठीक है ना, वो बाकी सब ठीक कर लेगा. अगर उसको समझ आ गई कि मुझे बच्चे को इस तरह से मोल्ड करना है, तो वो पेरेंट्स को भी संभाल लेगा और वो बच्चे को भी संभाल लेगा. आपका टीचर ठीक तो आपका देश ठीक है, क्योंकि वही बच्चा आगे चल के पॉलिटिशियन बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा, So true. वही आपका कैबिनेट संभालेगा, वही आपके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे. सो आई थिंक टीचर्स के ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए. लेकिन अब क्या है कि टीचर्स आर कमिंग अंडर लॉट ऑफ प्रेशर. पेरेंट्स उनको आके बता रहे हैं कि कैसे पढ़ाओ हमारे बच्चों को. जी जी जी. एक टाइम था when you trusted the teacher with your word, राइट. but now it's like you are also an active part of that. You are telling Yes. the teacher what to do. So करेक्ट. सो टीचर्स भी, अब जैसे हम बहुत सारे स्कूल्स में काम करते हैं, तो सर वहाँ पर टीचर्स कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनते बच्चे. सो दैट इज़ वेयर पीपल लाइक अस वी स्टेप इन, क्योंकि हम आते हैं, ठीक है 2 घंटे के लिए जाते हैं स्कूल में, हमारी बात फिर भी सुनते हैं बच्चे, है ना, और हम उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाते हैं. सो आई थिंक जो रोल मॉडल्स हैं, हमारे जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, आई थिंक उनको मेन स्ट्रीमिंग करनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम्स में. उनको लेकर आइए. टीचर की भी एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता या जा सकती. सो ऐसे लोगों को आप फील्ड से लेकर आइए और अपने स्कूल सिस्टम्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उनके स्पेशल वर्कशॉप्स कराइए, स्पेशल सेशंस कराइए जिन्होंने एक्चुअल काम किया है, रियल काम किया. हम एंटरप्रेन्योर्स को तो ले जाते हैं, आजकल स्कूल एंटरप्रेन्योर्स को ले जाते हैं, टेक हेड्स को ले जाते हैं कि इन्होंने इतना टेक्नोलॉजी स्टार्टअप किया है. वो दे हैव अ टॉक विद द स्टूडेंट्स एंड टेल देम हाउ दे set up their tech company. But what about people who are working with the environment? If we take those people also, Yes. and I think Yes. that would make a Absolutely. huge change. एब्सोल्युटली. So, sir, आप father तो आपके चाहते थे medical या army, but then you
of course, inspired by Mrs. Williams, and coming back home and getting that reinforced. You went ahead and you graduated did a postgraduate in English literature, Yes. as well as mass communication. Yes, sir. And the ashram happened after that? No, it happened during my post graduation days. Acha, हाँ. acha. I was in Pune, so of course we had a brief this thing during our 7th 8th grade also in Allahabad. Acha. I studied in a Gurukul Manu Ashram, and then when I graduated in '86 from Allahabad University, then I came to Pune. So in Pune there was an ashram, and there I lived for three and a half years. And that was my turning point, because Wow. that was a time, like, of course, I had already started getting awards for tree plantation work and biodiversity and everything enhancement. But that was a period when I was getting these scholarships and everything, and then I was thinking of moving to Rhodes Island and pursuing my Shakespearean studies. That was my favorite subject. So, but then one day, as I just said before also, my Guruji, like, हम उनको आचार्य जी बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा कभी अहंकार मत करना कि तुम प्रकृति को के लिए काम कर रहे हो, प्रकृति ने तुमको चुना है अपने काम के लिए, मौका दिया है, तो वो सोच के जाना। जा तो रहे हो, ठीक है, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ा कंफर्टेबल लिविंग होगी, पर जिस चीज़ के लिए तुम पैदा हुए हो और जिस चीज़ के लिए तुम पिछले 20 साल से काम कर रहे हो, लगे हुए हो, अब उसको छोड़ के तुम बाहर जा रहे हो. सो दैट रियली, दैट इवनिंग दैट वाज जुलाई 89 की बात है, एंड समथिंग, so I decided I'm not getting into it, so I'll do this full time. Wow. So हाँ, पर उन्होंने ये भी कहा कि in this path of yoga and spirituality कभी भीख मत मांगना किसी से, तो why can't तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो, बच्चों को पढ़ाओ, बट फ्रीलांस रखो, नौकरी मत करो, अगर तुम नौकरी करोगे तुम बंद जाओगे, फिर तुम अपना काम नहीं कर सकते. सो वो एक प्यारा सा मुझे गुरु मंत्र मिल गया, और उस दिन से लेके आज तक मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और 2-4 घंटे जितना भी टाइम मिलता है, जब भी मैं होता हूँ, जहाँ भी होता हूँ. सो आई टीच ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री. फैंटास्टिक. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, इधर उधर से बच्चे आते हैं, और मैंने आज तक कभी किसी से फीस नहीं ली, तो वो अपने आप ही पेरेंट्स जो उनको ठीक लगता है वो दे देते हैं. ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गुरु दक्षिणा जो एग्जैक्ट, एंड आई हैव ऑलवेज गॉट मोर देन व्हाट आई डिजर्व, एंड मेनी ऑफ देम मेरे स्टूडेंट्स ही आज हमारे डोनर्स भी हैं. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आज फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, और दे आर देयर टू सपोर्ट अस, एंड बस इट जस्ट हैपेंड, कारवां बनता गया. Yes, it's very interesting. तो आपकी calling towards spirituality भी शुरू से बचपन से थी, या this is something that you developed? हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी की गंदी आदत हमारी नानी से पड़ी हमको, क्योंकि वो आश्रम में ही रहती थी. अच्छा. और गंगा जी के किनारे रहती थी इलाहाबाद में. अरे वाह. हाँ, वैसे वो पंजाब से थी, अमृतसर से, बट शी केम टू दिस थिंग. और बचपन से जब हम पैदा हुए थे, माय फादर वाज बीइंग इन द आर्मी, कभी बॉर्डर में, कभी नीफा, कभी मेघालय, कभी मणिपुर, तो कभी नागालैंड, कभी पोस्टेड रहते थे फील्ड एम्बुलेंस में और मेडिकल उसमें. तो नानी ही हमारे साथ रहती थी. माय मदर वाज डूइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन हिंदी लिटरेचर, तो मैं नानी के पास ही पला बड़ा हुआ. सो जो स्पिरिचुअलिटी का जो कहते हैं ना, घुट्टी पढ़ाते हैं जी जी जी, तो वो नानी ने अच्छे डोजेज में बचपन से ही. सो उनका ये मानना था कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, सो अब तुम आ ही गए हो प्लैनेट पे तो मजा लो, सो शी वुड ऑलवेज टेल मी, 6 साल की उम्र से ही ये सुन रहे हैं कि देखो बेटा, 70 साल की उम्र होती है एक औसतन इंसान जी, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 70 मल्टीप्लाइड बाय 365 इज 25,500 दिन है आपके पास. अब आप डिसाइड कर लो, रो के गुजारने हैं, कोर्ट कचहरी में गुजारने हैं, या प्रॉपर्टी बना के गुजारने हैं, या रियल एस्टेट बना के गुजारने हैं, या किसी की नौकरी या किसी की स्लेवरी करके गुजारने हैं,
यहाँ एक फ्री स्पिरिट और एक फ्री सोल होके वो करना है जो तुम्हारा मन करता है करने का। सो ये तुम्हारी वो 6 साल की उम्र से ही इस तरह की आपको शिक्षा दी जाती है, छोटे-छोटे उसमें। एंड शी हर्सेल्फ वाज़ अ वेरी रियलाइज्ड एंड अ वेरी मस्त बिल्कुल वो थे। एंड वो एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे, कहती थी कि बेटा मुझे मुन्ना बोलती थी, मेरे घर का नाम मुन्ना है, तो वो कहते थे मुन्ना एक चीज़ याद रखना, अगर तुम कोई काम कर रहे हो और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब तुम शायद कहीं गलत हो। जिस दिन लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे, बस समझ लेना बेटा तुम करेक्ट उस पे हो। सो उन्होंने कभी भीड़ का हिस्सा बनना नहीं सिखाया। जी, मतलब ये शुरू की बात है। that's so तो beautiful. That is so empowering also to हाँ, do that. तो सो दैट बिकेम माय वे ऑफ टेस्टिंग माई सेल्फ, दैट वाज माय लिटमस टेस्ट। कि फिर पीछे मुड़ के देखते थे कि अगर सारे लोग कह रहे हैं ठीक है, तो मुन्ना तो कहीं गलत है ना? और सब लोग कह रहे हैं नहीं 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 पीपल मत लगाओ, इस पे भूत होता है, इमली मत लगाओ, इस पे चुड़ैल होती है, ये होता है वो होता है, तो मुन्ना तो ठीक कर रहा है ना? So that became my this thing, and in a very positive way, Yeah, in yeah. a very I'm Your not saying- guiding sort of हाँ, principle. so the same. And वो she was a कृष्णा डिवोटी, और हमें सुबह 4 बजे उठाती थी और कृष्णा से बातें करती रहती थी। और हमारे उनके रूम में कोई फर्नीचर नहीं होता था, वो आलती पालती मार के वो ज़मीन पे ही बैठती थी, ज़मीन पे ही सोती थी। हमारी भी चटाई जो होती थी बगल में होती थी, और वहीं पर खाना बन रहा है, वहीं चाय बन रही है वहीं। और सुबह हमें एक कप चाय दे के कहती थी बेटा पढ़ लो 2 महीना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का ये जो टाइम होता है ये जी, बेस्ट जी। होता है पढ़ने के लिए। तो हम पढ़ा करते थे। और फिर उसके बाद हमारी एक खुरपी जो होती थी उसको ईंटे के एक छोटे से पत्थर लेके उसको घिसती थी कि बेटा अब तुम्हारा शस्त्र तैयार है, जाओ और काम करो। वाह, तो जाके खड्डे खोदने और थावले बनाने। ऐसे। सो हाईवेज पे ग्रीन बेल्ट्स पे हमने सबसे पहले काम किया। एंड यस शी वाज माय फर्स्ट कोच, शी वाज माय गार्डनिंग कोच, शी वाज माय सॉइल कोच, शी वाज माय सोल कोच। सो माय Beautiful. ग्रैंडमदर वाज एंड देन ऑफ कोर्स देन क्या होता है कि कहते हैं ना कि आप चुंबक बन जाते हैं। सो बहुत लोग यू अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ सोल्स। Sure. When I traveled abroad, I found similar people. I found gypsies and I found, जैसे मलंग लोग बोलते हैं, है ना? जी, तो जी, जी। नॉर्मल लोग मिलते ही नहीं थे हमें, कोई, है ना? कि नॉर्मल कोई होता ही नहीं था। तो आप जैसे होते हैं वैसे आपको मिलने भी शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नीज लोगों की जो होती हैं, कुछ प्रारब्ध चीज़ें होती हैं, कुछ आपके जी, पिछले जी। जन्मों से भी हैं। इफ़ समबडी बिलीव्स दैट, आई पर्सनली फील कि ये तो एक एवरलास्टिंग जर्नी है। शरीर बदलते रहते हैं, और पिछले जन्मों में हमने कुछ पेड़ काटे होंगे, तो उसकी कंपनसेशन में इस बार प्रकृति हमसे सारे पेड़ लगवा रही है ना? कुछ तो बट ऐसा। यू ऑल्सो मेंशन्ड कि आपके गुरुजी ने आपसे ये बड़े क्लियरली कहा दैट स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन दैट यू गो बेग टू समवन, यस इट डजंट मीन कि आप यू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड। यस क्योंकि लोगों का अक्सर ये नोशन होता है कि ध्यान व्यान में लग गए तो मतलब जी सर, अब बाकी सब तो खत्म। राइट। बट यू वर ऑलवेज क्लियर दैट योर He जर्नी used to वाज always use a phrase called meditation in the marketplace. वाओ, दैट्स तो रियली नाइस। he would always say कि दुकान पे बैठे हो हाँ, तो बुद्ध बन के बैठो। हाँ। तो जोरबा भी और बुद्ध भी, बुद्धा था जोरबा। सो ही वुड जोरबा था बुद्धा। सो ही वुड ऑलवेज दिस थिंग कि भाई जैसे हो वैसे रहो, तो लेकिन साक्षी भाव रखो हर चीज़ पे, डोंट गेट entangled with things, don't get entangled, love people but don't get entangled with things. Don't cling to people, don't cling to relationships, don't cling to things. And थोड़ा उनका था वो कि बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और इन चीज़ों में, so he would just बहुत फोर्स करते थे और बहुत तरीके से, अलग अलग तरीक़ों से, कि अपना दिमाग यूज़ करो, लॉजिक भी कोई चीज़ होती है, एंड एट द सेम टाइम आपका जो अंदर से जो आवाज़ है, जो आपका इंस्टिंक्ट है, आपका जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन पे बहुत काम करवाते थे। तो जैसे वो कहते थे कि तुम्हें क्या लगता है, तो मैं कहता था नहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे सर ये करना चाहिए।
तो बेटा करो, हम्म, करो, प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज है, पर उसको भी 4 दिन पहले सोचो। हो सकता है ना रश, एड्रेनलिन रश में तुम ये सोच रहे हो, करेक्ट, लेकिन उसके साथ, उस विचार के साथ ही वुड ऑलवेज से 4 दिन उस विचार के साथ रहो, ठीक है। एंड देन इफ यू थिंक इट इज फॉर यू, गो हेड, यू नो। सो वेरी प्रैक्टिकल गाइडेंस। यस। और कभी भी हमें हमें हमने तो कभी भी किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हमने देखा कि जैसे हम यहाँ पर हार्टफुलनेस में भी देख रहे हैं, कान्हा में भी देख रहे हैं कि फैमिली कम्स फर्स्ट। आप Absolutely. फैमिली, अपनी जॉब, अपना बिजनेस आप पूरा कीजिए। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि सब त्याग छोड़ देना दिया। है, नहीं। इनफैक्ट हमारे आचार्य जी कहा करते थे, भोगी ही योगी होता है। हम्म, अगर तुमने भोगा ही नहीं तो तुम छोड़ोगे कैसे? किस What चीज are को you छोड़ोगे? renouncing? What are you renouncing? सो पहले भोग तो लो ठीक से, है ना। और अगर तुमने भोग लिया पूरा, हम्म, तो एक तुम्हें नॉन एंटेंगलमेंट जो आ जाती है, वही तो योग है। सो भोग में कोई वो नहीं है। सो मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ एनिमी, मटेरियल वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल। तो हर चीज़ को एंजॉय करो। म्यूज़िक है, डांस है, फूड है, क्यूलिनरी है, यो फॉरेन कंट्रीज जाओ, देखो परमात्मा ने इतना सुंदर प्लेनेट बनाया है। वो तो इंसान ने उंगलियां खींच खींच के, बॉर्डर्स खींच के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान बना दिए, लेकिन परमात्मा ने तो एक ही गोला बनाया, एक ही प्लेनेट बनाया। तो मरने से पहले सब देख लो। हम्म, वो ट्रैवलिंग पे बहुत बोलते थे और अच्छा। रीडिंग पे बहुत बोलते थे कि अच्छे ऑथर्स को पढ़ो। ही हिमसेल्फ यूज्ड टू बी अ वोरेशियस रीडर। तो हमें रीडिंग की आदत और ट्रैवलिंग की आदत बहुत डाली, तो उन्होंने हमें खूब घुमक्कड़ बनाया। तो और उसी के कारण हम समझ पाए दुनिया को, कल्चर्स को, क्रॉस कल्चरल लर्निंग्स जो होती हैं। एंड आई थिंक एंड वो उनकी जो ड्रीम्स होती थी, और हमारे और भी कई टीचर्स की। एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इज कि मैं पिछले 2.5 दिन में उन सब ड्रीम्स को एक कॉन्क्रीट फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में मैं इस एनर्जी फील्ड में देख पा रहा हूँ। That is so beautiful. कान्हा that is so में देख पा रहा हूँ। Because जैसे आपने कहा कि एक ही गोला बना रखा है परमात्मा में, आई थिंक spiritually also it's just one world actually. Yes, We have yes. different paths and different people teaching different things, but it's actually one spiritual world. It's unity in a way. तो आपने जो enjoying life का एक जो जज्बा था जो गुरुजी ने आपके जी, अंदर, तो you mentioned Shakespeare you really enjoyed. Yeah. What attracted you to Shakespearean literature? सर इट वाज बेसिकली दी, हम लोग जैसे फॉरेस्ट की लैंग्वेज में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जी, जी, जी। डाइवर्सिटी, यू नो। Yes. ट्रेजेडी भी है, ड्रामा भी है, Comedy कॉमेडी भी भी है, विजडम भी है, यू नो। सो वो एक जो आयाम था शेक्सपियर का, वो बहुत 36 अक्रॉस 36 प्लेज एंड यू नो, सो एक जीनियस था वो, यू नो, कि जो सो बस जब पढ़ते थे बहुत अच्छा लगता था। और आई जस्ट वांटेड, मतलब एक लाइफ में होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कि आपका मन करता है कि आप किसी ऑथर पे पीएचडी करें या कुछ हैं। सो आई हैड चोजन शेक्सपियर टू बी माय, बट वेल प्रकृति का कुछ और ही प्लान था। बट एजुकेशन नेवर गोज वेस्ट, एजुकेशन नेवर गोज वेस्ट। सो जो हमने पढ़ाई की, लिटरेचर में हमें पढ़ाई की, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, बट literature teaches you to be a voracious reader. Yes. You can't read, you can't be a student of literature if you can't gobble up 5 to 6 books per week. तो उसमें मिक्स होके साइंस की बुक्स भी आ जाती थी, बॉटनी की बुक्स भी आती थी। सो पूना में, दिल्ली में, देहरादून में, कोलकाता में, wherever that was posted, तो हम किलो के हिसाब से रद्दी में किताबें खरीदते थे। और एक मेरे को आदत होती थी, नानी ने आदत डाली, पुरानी किताबें खरीदो, सेकेंड हैंड। यस, सेकेंड हैंड। तो वो किलो में बिकती थी, 4 रुपए किलो, 3 जी, रुपए, 2 रुपए किलो की किताबें बिकती थी। तो हम करते थे, देखते थे, हाँ भाई संगीत पे भी, म्यूजिक पे भी पढ़ना, आर्ट पे भी पढ़ना, आर्किटेक्चर पे भी पढ़ना, एंथ्रोपोलॉजी पे भी पढ़ना, सोशियोलॉजी पे भी पढ़ना, हिस्ट्री भी। हिस्ट्री इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। मिडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है,
फिर यूरोपियन राइटर्स हैं, टॉल्स्टॉय है, मार्क्स हैं, एंजल्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे पढ़ा। सो आई फील व्हेन यू आर वर्किंग विद एनवायरनमेंट, तो ये आप पूरे इकोसिस्टम के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। सो ट्रू। मेनी पीपल से, अरे तुम सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की किताबें क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ट्राइबल्स, तो जो ट्राइबल्स का इकोसिस्टम है, आप ट्राइबल्स के एरिया में जाके काम करना चाहते हैं, अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी और एथनोग्राफी, डेमोग्राफी की समझ नहीं है, वहाँ की पॉपुलेशन किस तरह से सोचती है, उनके कल्चर्स क्या हैं, उसका फोकलोर क्या है उनका, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, आप उनके लेवल पे आके आप नहीं काम कर पाएंगे। सो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। जब आप गांव में जाते हैं, अब जैसे लोग हमें पीपल बाबा के नाम से जानते हैं, सो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पीपल लगाता हूँ, मैं तो 108 प्रकार के पेड़ लगाते हैं। हम बायोडाइवर्सिटी पे काम करते हैं, हम पानी पे काम करते हैं, हम बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज पे काम करते हैं, इंसेक्ट्स पे काम करते हैं, रेप्टाइल्स पे काम करते हैं, लेकिन लोग पीपल बाबा कहते हैं। कम्युनिकेशन की बात है, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था तो नानी ने एक चीज़ समझाई कि देखो बेटा, अपनी जाके ना नॉलेज मत झाड़ो लोगों को। शी वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। तो कहते बेटे तुम एक काम करो, तुम एक वृक्ष को चुनो। तो पहला वृक्ष जो हमने चुना था वो नीम था, ठीक है? तुम नीम की प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। नीम जो होती है विलेज फार्मेसी होती है, उससे 110 प्रकार की औषधियाँ बनती हैं। जी जी जी। तुम जाके उसकी ठंडी छाया के बारे में बात करो। तो हम जब राजस्थान, महाराष्ट्र में हमने बात की, मराठवाड़ा में काम किया, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, नांदेड़, ये पूरा वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, तो वहाँ पर नीम के ऊपर हमने बहुत काम किया, मिलियंस ऑफ नीम लगाए वहाँ पर। तो वहाँ पर चलता था। लेकिन जब हम पंजाब के साइड आए, हिमाचल आए, उत्तराखंड आए, तो यहाँ पर नीम के ऊपर इतना रोमांस नहीं था लोगों का। जी जी जी। वहाँ पर हमने पीपल की बात करी, है ना? तो पीपल के ऊपर जो भूत, तो वो सब लोग कहते थे भूत रहता है यहाँ पे, तो आप डिनाई भी नहीं कर सकते कि भूत नहीं रहता। हाउ डू डिस्प्रूव, है ना? सो आप उनको फिर एक साइंटिफिक तरीके से आपको समझाना पड़ता है कि पीपल का जो पत्ता होता है, उसका लीफ स्ट्रक्चर, बायो इंजीनियरिंग ऐसी होती है, उसका पीटियोल होता है, तो वो तोड़ के उनको दिखाना पड़ता था गांव वालों को कि लाइटेस्ट ब्रीज भी होता है तो ये हिलता है, तो आप सोचते हैं इसके ऊपर भूत बैठता है, ये भूत नहीं है, ये इसकी बायो इंजीनियरिंग है, एरोडायनामिक्स ऐसी है, ये पत्ता हिलता ही रहेगा, रात को भी हिलेगा, दिन में भी हिलेगा। तो धीरे धीरे उनको फिग्स के बारे में, तो वो कहते थे नहीं ये तो भूतिया फिग है कि आप इसको तोड़ो तो इसके अंदर से मक्खी निकलती है, तो ये तो कुछ जादू ब्लैक टोना। मैजिक है, ये तो जादू टोना है एक तरीके से। तो उनको वो भी समझाना पड़ता था कि फिग फ्लाई क्या होती है, वो है। तो साइंस एंड सुपरस्टिशन, तो उसका एक बड़ा प्यारा सा संगम था पीपल ट्री। और पीपल की एक श्रद्धा भी है लोगों की, तो कई बार अपने पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कभी कभी नीचे फूल भी रखने पड़ते थे और लाल रंग का एक पत्थर भी रख देते थे कि भैया इसको मत छू, है ना? तो छोटे छोटे ये कारनामे करने पड़ते हैं। सो आई थिंक वी जस्ट रियलाइज्ड वन थिंग कि आपका जो कम्युनिकेशन है लोगों का, वो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। कीप इट वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल। एंड अगर आप एक वृक्ष के बारे में लेके वहाँ पर एंट्री पॉइंट लेते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि पीपल जो होता है पानी का चुंबक होता है, वो अगर आप कुएं के पास लगाएंगे तो कुएं में पानी आएगा, तालाब के पास लगाएंगे तालाब में पानी आ जाएगा, अगर आप उसको चौपाल में लगाएंगे तो आपको अच्छा सा एक सोशल गैदरिंग करने की एक कैनोपी मिलेगी, तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको देना है। पीपल का वृक्ष आप कहीं लगाते हैं तो उसकी कैनोपी के नीचे कम से कम 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। हमने कभी भी उसको मैपिंग नहीं की, इकोनॉमिक मैपिंग नहीं की कि जीडीपी में इसका कितना बड़ा रोल है। बिल्कुल, इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एब्सोल्युटली, बिलियंस ऑफ रुपीज। यस, आपका देखिए वहाँ पर स्क्वायर ऑफ 4 लोग, एग्जैक्टली गांव का क्या है, शहरों में भी देख जी जी जी। नीचे एक चाय वाला बैठा होगा, एक कोई एक नाई पान बैठा वाला होगा, हो, एक नाई बैठा होगा, कोई बैठा होगा। हमने कभी ये कैलकुलेट किया उसको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है, उसको जीएसटी नहीं देना है, उसको बिजली का बिल नहीं देना है, उसको पानी का बिल नहीं देना है, उसको कोई म्यूनिसिपैलिटी के खर्चे वो नहीं देने हैं, है ना? तो वो हम ये चीज़ें कैलकुलेट ही नहीं करते। एक वृक्ष जो है वो कितने लोगों का आजीविका चलाता है, स्पेशली द बिग कैनोपी ट्रीज, चाहे वो नीम हो, शीशम के हो, बड़ हो, और पीपल खासकर जो होता है। सो ये चीज़ें सारी समझानी पड़ती हैं लोगों को।
सो जब तक वो चीज़ें नहीं समझ आती, सो एंड इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। सो थोड़ा सा तड़का स्पिरिचुअलिटी का, थोड़ा सा सुपरस्टिशन का, थोड़ा सा साइंस का, थोड़ा बायोडाइवर्सिटी का, थोड़ा सॉइल बायोकेमिस्ट्री का, और बाकी ये है कि बस गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है, एंड वी आर एबल टू डू व्हाट वी आर डूइंग टुडे। This is something that Dr. Ramakant also mentions very often, that there is a cultural value to a tree as well. It's not just the wood value. हम लोग wood value लगाते हैं पेड़ की, but the cultural value is so much more. The medicinal value, this what medicines it's providing, that you cannot, if you start mapping that figure, then a tree is far more valuable than you would. And we should take, हमें सीखना चाहिए हमारे immediate neighbor जो हैं भूटान, है ना। अगर आप भूटान जाते हैं तो वहाँ सिवाय फॉरेस्ट के और कोई बात ही नहीं होती। वाह। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 60% ऑफ द लैंड विल रिमेन अंडर फॉरेस्ट कवर, एंड दे अचीव 72%। इट इज द ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। दैट्स इनक्रेडिबल, है ना। एंड दे डिड इट बिकॉज द किंग वांटेड इट। The king is always very protective of his forests and very this thing, because they understood a very, very simple thing, कि the parameter and the definition of success and development is health and happiness, है ना। और वो तो आपको सिर्फ जंगल दे सकता है। जंगल होगा, पानी होगा, पानी होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, बायोडाइवर्सिटी होगी। जब आपके पास सब कुछ सुंदर सुंदर यू घिरे हुए हो। आज कान्हा में क्या है? कान्हा इज दैट। कान्हा इज आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द मास्टर्स ग्रेस एंड हिज एनर्जी, ये एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो वनस्पति चेतना ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वनस्पति चेतना का बना हुआ है ये और बढ़ता ही जाएगा। मैं yesterday I was talking to various officials over here, तो इतने ambitious plans हैं कि सब अभी तो बहुत कुछ होना है यहाँ पे। So I think जहाँ वनस्पति चेतना है वहाँ पर सब ठीक होता है। So I think this is what the countries and the leadership of the political leadership of every country should understand, कि ठीक है डेवलपमेंट अपनी जगह है, सड़कें ज़रूरी हैं अपनी जगह है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री अपनी जगह है, लेकिन वनस्पति चेतना को जो उसका वेटेज है उतना हमको देना चाहिए। आपने इंट्यूशन की बात करी कि आपके गुरुजी भी बहुत अहमियत देते थे, देयर वाज एम्फेसिस ऑन इंट्यूशन, यूजिंग योर इंट्यूशन। You must have, of course, read the book Peter Wolben ki The Secret Life of Trees. So that's a Bible. Yes. Sir. So intuitively, do you think that these trees are doing far more work than we can actually imagine? जो हमें पेड़ की ग्रोथ दिख रही है, क्या intuitive communication पेड़ों में चल रहा है? Is the forest also like an intuitive entity? Sir, हम लोगों ने अभी तक AI पे काम नहीं किया, हम AI पे काम कर प्री इंटेलिजेंस पे काम ही नहीं किया। आप उसको FI कह लीजिए, फॉरेस्ट इंटेलिजेंस कह लीजिए, मैं उसको CI बोलता हूँ, कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलता हूँ। दिस इज 400 मिलियन ईयर्स। 400 मिलियन ईयर्स से प्लैनेट चल रहा है, एक तरीके से चल रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, हम तो अभी जुमा 6000 साल पहले आए हैं। चलो लोग कहते हैं 50,000 साल पहले हैं, चलो मान लेते हैं इथियोपिया में हम 50,000 साल पहले पैदा हुए थे। 6000 ईयर्स से ही हमारी सिविलाइजेशन है, जहाँ पेपर आया, राइटिंग आया, सोच आई, कम्युनिकेशन आया, लैंग्वेज आई, ग्रामर आई, शास्त्र लिखे गए, एपिक्स लिखे गई, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, इंसान पैदा हुआ। 6000 साल से मैं कहूँगा कि चलो 10,000 साल लगा लीजिए, लेकिन बट trees and forests and the natural world, that's been around for 400 million years over here. हम कैसे सोच सकते हैं, and we are trying to override it. हमारे फॉरेस्ट्री लैंग्वेज में एक चीज होती है कि ये इन्वेजिव स्पीसीज है। जी इन्वेजिव स्पीसीज। सर इन्वेजिव स्पीसीज तो एक है, होमो सेपियंस। वो तो हम हैं, हमने प्लेनेट पे आके सब उल्टपटांग कर दिया पूरा। वीव टर्न्ड एवरीथिंग अपसाइड डाउन। उन्होंने क्या किया? परमात्मा ने अगर किसी घास को बनाया है, अगर बुश को बनाया है, चाहे आप लंटाना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भी पार्थीनियम हुआ, गाजर घास हुई,
तो सोच समझ के बनाया। दे इट हैज़ अ रोल इन द इकोसिस्टम। प्लीज। वो बात अलग है कि हम उतने इंटेलिजेंट नहीं हुए हैं, हमारी अभी तक उतनी रिसर्च इन डेप्थ नहीं हुई है, हमारी अभी समझ उतनी मैच्योर नहीं हुई है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्वेजिव है या नहीं है। अरे भाई, हम इन्वेजिव हैं, हम लोगों ने इन्वेड करके चीज़ों को गड़बड़ किया है। वो तो देव बीन हियर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, देव बीन हियर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। आज आप उत्तराखंड हिमाचल की बात ले लीजिए, क्योंकि करंट है तो जी थोड़ा जी बिल्कुल। मैं एक जस्ट टू मेक माई पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, लोग कहते हैं कि फ्लड आ गया। पानी का हाईवे इज कॉल्ड अ रिवर। पानी तो रिवर में ही बहेगा ना, जी जी जी। है ना। तो अगर पानी तो कहीं इधर उधर नहीं गया, पानी तो अपने नदी में ही चल रहा है। ठीक है, कभी उफान आएगा, कभी थोड़ा स्पिल ओवर हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा, 2 हफ्ते इधर उधर जाएगा, फिर वापस अपने नदी में और फिर चल देगा। अब आप दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली में जब यमुना जी में पानी आया, दिल्ली में बारिश नहीं हुई, लेकिन पहाड़ों में बारिश हुई, वहां से पानी आया। ठीक है, अब पानी आया तो पानी में से मछली नहीं निकली, नदी में से क्या निकला? 25 लाख लोग निकले। एनक्रोचमेंट इतनी ज्यादा है। जी जी जी। सो नाउ दिस इज समथिंग वी हैव टू वर्क ऑन। हम नेचर की जगह पे एनक्रोच करके बैठे हैं। दिस इज वन कीवर्ड आई ऑलवेज, मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, वी हैव टू वर्क ऑन एनक्रोचमेंट्स। चाहे वो नदी की जगह हो, चाहे वो जंगल की जगह हो, कोई भी हमारे नेचुरल सिस्टम की जगह हो, इंसानों के लिए बहुत जगह है सर। उसको आइडेंटिफाई करके वहां पर जो खेल खेलना खेलो, वहाँ जो फैक्ट्री लगानी है, जो धुआं करना है, जो आपको स्कूल बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, बट रिवर बेड बनाने हैं, खाली आप करो। छोड़ दो, कैचमेंट लेकिन एरिया जो खाली छोड़ दो। एरिया है, जो नेचर का एरिया है, आप उसको तो कीजिए। एंड दिस इज वेयर द गवर्नमेंट्स हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट अबाउट। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। This is a basic difference. Their encroachment is not tolerated. There is zero tolerance for encroachments. Here, we love encroachments. So this is a major difference between. Yes. Also, there are tribal communities that live in the forest, एक तरीके से, और but they are like kind of, they have lived in the forest for centuries. जी सर। और उनका अपना एक wisdom होता है. I mean, there was one funny incident in Madhya Pradesh. My friend tells me he lives in a area that is tribals. Gond tribe होती है वहाँ. जी. So उनका कोई दोस्त आया था, and after a night of heavy drinking, he wanted to urinate, and he went under a tree. तो वो जो ट्राइबल थे, ना 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 वहाँ नहीं, वहाँ तो वो बड़देव रहते हैं। कोई दूसरे पेड़ पे, ना 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 वहाँ भी नहीं, वहाँ नीमदेव रहते हैं। तो एक तरीके से वो सब पेड़ में देवताओं का वास मानते थे। जी. Do you think the tribal, would you quantify the tribal as an encroacher also? So they are part of the biodiversity. They are part of it. वो they are, जैसे हम कहते हैं ना प्लांट स्पीसीज, जी जी जी, they are part of that species. आप उनको तो हटा ही नहीं सकते. And let me tell you, if we fiddle with tribals, your forest cannot be protected. It will ultimately be taken over by land mafia. It will be taken over by poachers. It will be taken. क्योंकि ट्राइबल्स हैं तो आपके फॉरेस्ट सुरक्षित हैं. दिस इज समथिंग द टॉप लेवल पॉलिसी मेकर्स हैव टू अंडरस्टैंड. एंड ये तभी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी जब आप खुद जाके फॉरेस्ट में रहेंगे. सो ट्रू. आप जाके ये 4 दीवारों में बैठ के, एसी कैबिन्स में बैठ के आप पॉलिसीज बनाते हैं? नहीं सर. वी हैव वर्कड अ लॉट विद ट्राइबल्स एंड वी हैव वर्कड इन दिस डेंस फॉरेस्ट. सर क्योंकि creation and destruction and creation is part of the forest system, part of the ecosystem. तो वो पेड़ काटता भी है, पेड़ गिराता भी है. जो गिरा हुआ पेड़ है उसमें दीमक भी आती है, दीमक उसको खाती है, फिर सॉइल बनती है. एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट. ट्राइबल्स, अब ये तो वही बात हो गई कि अमेजोन के जंगलों में से आप ट्राइब्स निकाल दीजिए, अमेजोन कोलैप्स कर जाएगा. आप नॉर्थ ईस्ट से उनके ट्राइब्स हटा दीजिए, इट विल कोलैप्स. ठीक है, आपकी सड़कें बन जाएंगी, आपकी कुछ बिल्डिंग्स बन जाएंगी, लेकिन फॉरेस्ट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. फॉरेस्ट, जब हम इकोसिस्टम बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ट्राइबल्स आर अ पार्ट ऑफ इट. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग सर, जब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं, चलो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हैं,
तो अब क्या सडनली क्या तकलीफ होनी शुरू हो गई? अब कैसे ऑल ऑफ अ सडन इन 23 वी आर थिंकिंग कि हाँ जी दैट इज अ वो थ्रेट है, ये थ्रेट है। नो, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया तो उनको निकाल। वो क्या, वो तो पेपर डिक्लेरेशन है। वो तो आपने टाइप किया या आपने किसी एक्सेल शीट पे लिखा, उसका प्रिंट आउट निकाला और आपने कह दिया जी ये रिजर्व्ड है, ये नॉट रिजर्व्ड है, ये प्रोटेक्टेड है, ये वो है। ये सर पेपर के सेंटेंसेस हैं, ये तो काले अक्षर हैं सिर्फ। जो रियलिटी है वो उनके, हाँ आप उनको एम्पावर कीजिए। आप जो फॉरेस्ट एरियाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनकी वॉलिंग कराइए, उनकी फेंसिंग कराइए, उनको इक्विप कीजिए। आप विलेजर्स को, ट्राइबल्स को इक्विप कीजिए, उनको आप जो भी हथियार, उनको कैमरास, कैमरा ट्रैप्स, उनको रेडियो वायरलेस इक्विपमेंट उनको दीजिए ताकि वो पोचर्स के अगेंस्ट लड़ सकें। उनके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए। ट्राइबल्स के जो यूथ है उनको आप फॉरेस्ट गार्ड्स बनाइए ना। आप एक जनरल कैटेगरी से बाहर से लोगों को, सो इन्वॉल्व देम एंड डोंट डिस्प्लेस देम। क्योंकि अक्सर हम पाते हैं that the forest guard is from some other place that has no connection with that forest or that land. He is just doing a job. And नहीं। सो हम भी जब काम करते हैं तो हमेशा लोकल एम्प्लॉयमेंट करते हैं, लोकल लाइवलीहुड होनी चाहिए, बिकॉज दैट मैन नोज इट, ही नोज हिज सॉइल, ही नोज हिज वेदर, ही नोज कब बारिश आएगी। वो हवा को सूंघ के बता देता है, 10 चीज़ें बता दे जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं बता पाएगा। सो यू ऑलवेज नीड टू रिस्पेक्ट द लोकल विजडम ऑफ ट्रेडिशनल विजडम जो है। सो आई थिंक वी नीड टू वर्क विद द ट्राइबल्स, डोंट डिस्प्लेस देम, उनको एम्पावर कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ें ठीक नहीं है तो सेशंस लीजिए, वर्कशॉप्स लीजिए, उनको ट्रेन कीजिए और उनको लगना चाहिए ये हमारी ज़मीन है, हमारा देश है, हमारा गांव है, हमारा जंगल है, हम इसको और अच्छी तरह से कैसे प्रोटेक्ट कर सकें। एंड देन यू नीड टू टेल देम कि टूरिज्म हुआ या और भी कई चीज़ें हैं, कैसे आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है। अब now a lot of people are very keen to do some work for the environment. I think जैसे आपने शुरू में कहा था that everybody is good in a way. There is a goodness inside everybody. So nobody wants to harm the environment intentionally. Everyone wants the environment to grow and they want to plant trees. What are the precautions? Are there some precautions as what to plant? या सीधे आप कुछ भी प्लांट कर दीजिए? नहीं, वेरी सिंपल थिंग इज, एक तो 2 शब्द होते हैं इंडिजिनस एंड नेटिव, ठीक है। अब उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हमारा तो बहुत सिंपल है, आप अपने ज़िले को देखिए, आप अपने गांव बस्ती को देखिए, आसपास क्या उगता है, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे खान पान की बात होती है, अगर आप किसी को कहते हैं कि आप देखिए इस गांव में पहनावा क्या है, उसकी भाषा क्या है और वहाँ क्या उठना बैठना क्या है, कल्चर क्या है, ठीक है। अगर आप उस तरह से थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे वहाँ पर, है ना। यू विल नॉट बी एन आउटसाइडर। एग्जैक्टली द सेम थिंग विद बायोडाइवर्सिटी। आप वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस मत कीजिए जो उस ज़िले की नहीं है, जो उस डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, जो उस जोग्राफिकल एरिया की नहीं है, जो उस टेरिटरी की नहीं है, ठीक है। तो आप आसपास देखिए कि उस एरिया में, अब जैसे कान्हा है, अगर तेलंगाना में जैसे जो चीज़ें उगती हैं आप वो वाली उगाएं, बिल्कुल, क्यों ना। सो दैट इज़ अ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ रिसर्च बेस। फिर कंजर्वेशन पे हम आते हैं कि आप कुछ ऐसी प्लांट स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो करना, तो उसके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाइए। तो आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना के, जैसे हमने कान्हा में एक रेन फॉरेस्ट बनाया, नाउ दिस इज़ अ नियर इम्पॉसिबल थिंग, यू नो। आप वेस्टर्न घाट्स का रेन फॉरेस्ट यहाँ रिक्रिएट करते हैं, पर ठीक है, आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल करके आप बनाते हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। तो ये ह्यूमन बींग्स में, लोगों में ये कॉन्फिडेंस लेकर आता है कि यस इट कैन बी डन, इट कैन बी डन इफ इट इज़ डन विद कन्विक्शन, इट इज़ डन विद यू नो प्रॉपर रिसर्च एंड दिस थिंग एंड हार्ड वर्क। सबसे ज़रूरी मैं मानता हूँ हार्ड वर्क है, तो ये ज़रूरी है। और व्हेन इट कम्स टू इंडिजिनस एंड नेटिव, तो ये बहुत बड़ी डिबेट चलती है लोगों की, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ। हम एक चीज़ जानते हैं, अगर आपने कोई चीज़ लगा भी थी और अगर वो चल गई, व्हाट वर्क्स वर्क्स। ये किसने कहा कि ये चीज़ जो है, भाई दिस इज, वी आर इन अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग वर्ल्ड। लोग कहते हैं नहीं
100 साल पहले ये पौधा यहाँ लगता था तो वही लगना चाहिए। अरे भाई 100 साल में हवा बदली है, टेम्परेचर बदला है, और भी तो कई चीजें बदली हैं। यू नो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज टुडे। So true. Reality of the world is today. Reality of environment is today. Ecosystem reality is today. आपको कुछ भी डिसाइड करना है, आप बायोडाइवर्सिटी पे डिसाइड करते हैं, आप कुछ भी डिसीजन लेना है, आप देखिए आज क्या चीज वैलिड है। ये जो हिस्ट्री बुक्स लेके बैठ जाते हैं हम, और वहाँ के नहीं जी 5000 साल पहले ये था, 4000 साल पहले, अरे भाई वो तब की बात, देश काल पात्र भी तो कोई चीज़ होती है। वो उस वक्त ठीक था, उस वक्त बिल्कुल ठीक था, आज से 4 साल पहले बिल्कुल ठीक था। ऐसे तो मैं लोगों को तो 10 साल पहले तो नोकिया का वो छोटा फ़ोन आता था, वही लेके घूमो। आप स्मार्टफोन क्यों लेके घूमते हो? आज हम ये कैमराज यूज़ कर रहे हैं, पहले तो वो काले कपड़े के नीचे बैठ के हम लोग एक फ़ोटो खींचते थे, तो उसी को लेके बैठे रहोगे? नहीं ना, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग ना। सो व्हाई कांट एनवायरनमेंट इवॉल्व? आप उसको इतना एनवायरनमेंट को बेवकूफ़ समझते हो, वो हमसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंस है। इट इज़ इवॉल्विंग। हाँ, हमें ह्यूमन आई को, नेकेड आई को दिखता नहीं है, बट इट इज़ इवॉल्विंग। इफ यू सिट इन अ फॉरेस्ट and we have that pleasure and that honor of working in dense forest, that you wonder, अच्छा मतलब आप जहाँ आपकी मनुष्य की इंटेलिजेंस जा भी नहीं सकती, वहाँ पर वो फॉरेस्ट इंटेलिजेंस काम कर रही होती है। सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ टुडे। आज क्या चीज़ वैलिड है, आज क्या चीज़ चल रही है, आज कौन सी स्पीसीज चल रही हैं, और क्या वो स्पीसीज खुश हैं? अगर खुश हैं तो ये नेटिव और इंडिजिनस का जो है ये कुछ ज़्यादा ही डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होता है। एक और शब्द वो इन्वेसिव आपने मेंशन किया, एक इन्वेसिव है। हाँ। अच्छा, तो एक हो गया नेटिव, एक हो गया इंडिजिनस, एक हो गया इन्वेसिव। तो इन्वेसिव का भी मेरा ये कहने का है कि इन्वेसिव भाई, अगर परमात्मा ने कुछ बनाया पहले समझ लो कि वो क्या है। अब जैसे हम कान्हा में भी देख रहे थे, तो कल ही जो मास्टर गार्डनर हैं उन्होंने बड़े प्यार से हमें समझाया कि जितना लैंडाना है, जितना पार्थीनियम है, गाजर घास है, हम उसको लेके उसको स्लरी के साथ उसको मिक्स करके उसकी बहुत अच्छी कंपोस्ट बनाते हैं। इट गोज़ बैक टू द नर्सरी, एंड नर्सरी के अंदर हम पौधे लगाते हैं। इतनी ब्यूटीफुल 120 एकड़ की नर्सरी है आपकी, मेगा नर्सरी जो है। सो इट इज़ हाउ वी यूज़ इट। यू नो, इंसान क्या है, अगर उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो उसको नकारता है। तो यू नो, वी ट्राई टू पुश इट अंडर द कार्पेट एंड वी ट्राई टू से दिस इज नॉट राइट। नहीं, राइट नहीं है। हमें, हमारी अभी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप नहीं हुई है टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज ओवर हियर। इट्स एट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, ओ अच्छा इसीलिए है ये बात, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आई मीन आई एम गिल्टी ऑफ दैट आल्सो, बिकॉज आई ऑफ्टन वंडर, मैं जंगल जब जाता हूँ आई ऑफ्टन वंडर कि लैंटाना के बिना कैसा दिखता होगा, कि लैंटाना बहुत लोग इन्वेसिव स्पीशीज कहते हैं। सो आई वंडर कि ये जंगल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कैसे होते होंगे विदाउट दिस लैंटाना। हाँ सर, इसमें ये भी है कि हर चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, है ना। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो अगर आप सोचेंगे कि लैंटाना बहुत ज़्यादा, यू नो व्हाई, अगर आपका मिक्स फॉरेस्ट है, अगर आपका हेल्दी फॉरेस्ट है, मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज़ शेयर करूंगा, उसमें कोई भी चीज़ इन्वेजिव नहीं हो सकती, क्योंकि जंगल की अपनी एक इंटेलिजेंस है, वो अपने आप ही खा जाएगा उसको। अगर एक स्पीसीज डोमिनेट करने की कोशिश करती है तो दूसरी स्पीसीज, वो जैसे हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज में भी है, ठीक है, तो दूसरी स्पीसीज जो हैं, अगर जी है ना, तो दे टेक काउंटर मेजर्स। सो इतनी गजब की बायोकेमिस्ट्री है और इतनी गजब की उनकी सोशल लाइफ है, और जो मदर प्लांट है उसको लगता है कि मेरा न्यूट्रिशन, मेरे बच्चे, मेरी जो छोटे छोटे नीचे सीड्स गिरे हैं, सैपलिंग्स खा रहे हैं, तो उनको भी ख़त्म कर देगी वो। सो ये जो सर्वाइवल का गेम है और एवोल्यूशन का गेम है, वो जो चार्ल्स डार्विन वो जो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वाली बात होती है, तो इट इज़ अ ऑनगोइंग थिंग। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मैजिक, इट्स ब्यूटीफुल थिएटर। वो जो कोरियोग्राफी होती है पूरी, यू नो, इट्स आई फील के यू नो, यू गो एंड सी द फॉरेस्ट फ्लोर, it's magic happening over there, you know. Yeah, but you need an eye for that, so I would only say कि मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता
कि आप एक ब्रांड ऑफ क्लोथ्स पहनते हो, एक तरीके का फ़ोन लेके घूमते हो। मॉडर्न होने का मतलब होता है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को समझिए। मैं उसको मॉडर्निटी बोलता हूँ। यू नो, एक्सेप्ट टुडे, टुडे इज रियलिटी, येस्टरडे इज गॉन, फ्यूचर हमने देखा नहीं। तो आज जो है, हियर एंड नाउ, यही रियलिटी है। अगर आपको दिख रहा है कि टेकोमा बहुत अच्छा चल रहा है, गुलमोहर बहुत अच्छा चल रहा है, मल्तास बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो लेट इट बी ना। आप क्यों एकेडमिक उस डिबेट में चले जाते हैं कि नहीं नहीं ये गुलमोहर तो मेडागास्कर का है, पीली कनेर तो मेक्सिको का है, ये इसका, अरे होता है, होने दो, उसको वीजा मिल गया, पासपोर्ट मिल गया, आपको क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक सीताफल भी मेक्सिको का है। आप तो कुछ भी। एंड व्हाई डू वी, यू नो, है तो प्लेनेट का ना, जी बिल्कुल, है ना। अगर जुपिटर सैटर्न से आया तो फिर चलो बात करते हैं कि हाँ भाई बाहर का है तो प्लेनेट का ही है, हमारी गोले का है, हमारी अर्थ का है। अगर आ गया तो आने दो, सीड उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, है ना। सो आई डोंट गेट इनटू दिस डिबेट ऑफ, एंड होता क्या है सर, आई टेल यू, हम ना बहुत सारी अपनी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। आप सीधे काम पे काम कीजिए ना। अब जैसे हम कहते हैं कि आप स्पीसीज लगाइए, आप सॉइल में कीजिए, उसको पानी दीजिए, उसे खाद दीजिए, उसे प्रोटेक्शन दीजिए, गाय भैंस बकरी से बचाइए, उसको ह्यूमन एनक्रोचमेंट से बचाइए। नेचर विल डिसाइड व्हाट टू कीप एंड व्हाट नॉट टू कीप। हु आर वी टू से? हम कौन होते हैं भाई? इतनी भी जिम्मेदारी, इतना भी जमींदार मत बनो कि नहीं जंगल में क्या उगेगा वो भी हम डिसाइड करेंगे। अरे आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, है ना। आप लगाइए, आपका काम सेवा है, विद लव एंड विद अ गुड नाइस गुड हार्ट, पूरे हार्टफुलनेस के साथ आप अपना काम कीजिए। लेट नेचर डिसाइड व्हाट इट वांट्स टू कीप, व्हाट इट डजंट वांट टू कीप। इट विल नॉट कीप। जो चीज़ उसके लिए हेल्दी नहीं है वो रखेगा ही नहीं। इतना तो उसकी इंटेलिजेंस पे विश्वास रखो। So true. That's a very practical approach, and it's something that works. Will get work. Yes. आपने कितना सही कहा कि we can spend hours in debate, pedantic debate about this and that point, but it doesn't make sense. You know, over time there are a lot of things जो we consider today that they are unacceptable, but previously were acceptable. हम आजकल we use a lot of wood as the human race. We use a lot of wood in so many things. In this room also we have so much wood to be used. But of course wood means the cutting down of trees. Do you think there will come a stage like that? अभी leather के साथ हो रहा है that people are stopping the use of leather. Even with silk, I think there is that ahimsa silk, no, which doesn't kill the worm, and people are getting more. Do you think that wood is something we are connected with as a human race? Yeah, there will come a time when perhaps even our dependence on wood will go away. It should not go away. It should not go away because we value. Wood has been our first habitat. हमारा जो सबसे पहला घर बना था जब हम केव्स में से बाहर निकल के नदियों के पास सिविलाइजेशन हमने एस्टैब्लिश की, तो सर उस वक्त अंबुजा सीमेंट और ये टीएमटी सरिया नहीं होता था। नहीं होता था, है ना। उस वक्त लकड़ी होती थी, है ना। तो हमारा एक बड़ा प्यारा लव अफेयर है फॉरेस्ट से, हमारा बहुत प्यारा इंटरडिपेंडेंस है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा अभी घर नहीं है, मैं तो स्कूटर मोटरसाइकिल पे ही रहता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं अपना घर बनाऊंगा मैं लकड़ी का घर बनाऊंगा। किसने कहा कि इवन ट्रीज विल गेट अनॉयड विद अस कि अगर हम उनको यूज ना करें। बात ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। आप तो यू आर थ्रोइंग द, आप बाथ वाटर को बेबी विद द बाथ वाटर, आप वो वाला करते हो। आप तो पूरा का पूरा जंगल ही उखाड़ के रख देते हो। जंगल ने कब बना किया? ट्राइबल्स कैसे जीते हैं भाई? उसी का फ्रूट खाते हैं, उसी के फिग्स खाते हैं, उसी के जड़ी बूटी लेते हैं, वहीं से लकड़ी लेते हैं, वहीं से। इट्स सो ब्यूटीफुल। उसी का घर बनाते हैं। आपने कहा आप नैनीताल के हैं, उत्तराखंड के जो सबसे सुंदर घर हैं, जी जी, मैंने बहुत काम किया उत्तराखंड में, तो आप देखें वो सब लकड़ी के बने हुए हैं। एंड क्या प्रॉब्लम है? देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम आती है अगर आप जंगल में आग लगाते हैं, प्रॉब्लम आती है आप ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, आप जंगल साफ कर देते हैं जस्ट बिकॉज आप वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो है। सो एक बैलेंस्ड, वही है द मिडल पाथ। सो ये मुझे भी बहुत लोग कहते हैं अरे आप लकड़ी के इस चीज़ पे लकड़ी पे सर ये वो लोग कहते हैं जो प्रकृति के साथ काम नहीं करते हैं।
जो प्रकृति के साथ काम करता है उसको जब आप प्रेम करते हैं ना तो आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, फिर प्रेम में एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो ये भी एक प्रेम है आपका इंसान का और जंगलों का। वो उससे फूड भी लेता है, वो उससे शेल्टर भी लेता है और उससे प्लेजर भी लेता है। और पेड़ों को भी अच्छा लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे इंसान हैं, ये खुश हैं। Actually, there's that saying also, na, that hunters make the best conservationists. Absolutely, I totally agree. Like Jim हाँ. Corbett. Exactly. पोचर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन यू नो अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इज ओके, अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इज ओके, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो बस वही है खेल। अब वही एक समझ लाने की जरूरत है ना, कि वे टू स्टॉप। जैसे कहते हैं ना कि बोलना एक कला है, लेकिन ऑरेटरी की जो सबसे अल्टीमेट कला है व्हेन टू स्टॉप टॉकिंग। तो वही है, हम एक्सप्लॉइट तो करते हैं चीज़ों को, डोंट एक्सप्लॉइट, यूज है ना। इनफैक्ट आप लकड़ी के घर बनाइए। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में ये अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तो कहूँगा लकड़ी के ही घर बनने चाहिए। आप ये सरिया और सीमेंट और कंक्रीट करके आप हीट आइलैंड्स क्रिएट कर रहे हैं, आप इतनी रेडिएशन क्रिएट कर रहे हैं, आप इतना हीट डाल रहे हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करके बैठता है, फिर रात को हीट रेडिएट करता है। दैट इज़ वाई आवर टेम्परेचर्स आर गोइंग अप। लकड़ी का घर कभी गर्म नहीं करता। True. It's all weather kind of a thing. Yeah. It's like warm in the winter and cool in the summer. Yes. So it has to be a very loving relationship with trees, loving relationship with forests, you know. And let's not get into this debate of, you know, वो sustainability की बात करते हैं। फिर then you'll get into plastics, फिर fabricated चीज़ों में, फिर प्लास्टिक्स में भी वो बेचारा वो प्लास्टिक आ गया तो अब वो सिंगल यूज प्लास्टिक के पीछे पड़ गए हम लोग। जी है ना। तो ये इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। और उसमें डिबेट में ज्यादा टाइम चला जाता है। डिबेट में नाउ हियर देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम ग्लैड यू रेज दिस थिंग। आई थिंक दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स इनटू प्ले। इफ यू आर स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, if you are a meditative soul, if you are a loving person and you are taking decisions from your heart, आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आई थिंक हम जब भारत को गुरु प्रधान देश बोलते थे या कुछ है, वो इसलिए कहते थे क्योंकि हमारे संस्कार बहुत अच्छे थे। एंड वी हैव लॉस्ट दैट। इसलिए मैं एजुकेशन बहुत कहता हूँ। We need to bring back that spiritual thing, and this is something beautiful what I see in Kanha, you know. आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हार्टफुलनेस का कोई मेंबर होगा जो प्रैक्टिशनर है, वो बाहर जाके भी किसी भी पेड़ को, किसी भी एनिमल को, किसी को भी दुख पहुंचाएगा। हो ही नहीं सकता। मैं ढाई दिन से 2.5 days I've been moving around, walking around your complex over here, and I don't see a single soul who has the capacity and the power to go out and harm something. I don't think so, because you know that is what we need to work on. So in the coming days, लोग कहते हैं कि हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें क्लाइमेटोलॉजिस्ट चाहिए। No, I think we need, हमें अब स्पिरिचुअल तड़का चाहिए। यू नो, जब तक वो चीज़ नहीं है आपके पास, किसी भी चीज़ का मीनिंग नहीं रह जाता। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी अगर आपको गाइड नहीं कर रही सर, देयर इज नो मीनिंग इन वॉट एवर यू डू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप इकोसिस्टम्स में, ट्राइबल्स में, एफॉरेस्टेशन में, बायोडाइवर्सिटी में, पानी के लिए, तालाबों के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं है एंड दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ द यूनिवर्स ऑपरेट्स, आप कोई भी काम को हाथ लगाओगे वो गड़बड़ ही होगी। और अगर आप हैं, अगर आप इन चीज़ों में हैं, तो आप कोई भी काम को हाथ लगाओगे उसका अल्टीमेट जो होगा वो सुंदर ही होगा, वो कभी भी किसी को हार्म नहीं करेगा। दिस इज़ माई माई चाइल्डहुड लर्निंग इज। सो आपका जो
स्पिरिचुअल फाउंडेशन है वो सर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है, वो बीच बीच में ठीक है, इट्स अ बिल्कुल। बिजी लाइफ, लेकिन अगर हम उस चीज़ के ऊपर स्ट्रेंथनिंग पे काम करें, उसको नरिश करने में हम काम करें, तो आई डोंट थिंक सो कि एनी पर्सन कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे बिल्कुल। एंड आवर सोसाइटी, आई थिंक इट स्टार्ट्स विद द फैमिली, जैसे आपने कहा, यस it starts with the family. If you have with grandparents are so influential for their grandchildren, Yes. अगर हम ये कर सकें, which is also a very thing that Daji writes a lot about. He's written a book called The Wisdom Bridge, which is basically about preserving this family, and this Yes. passing on of wisdom from the grandparents to the children to the grandchildren. Correct. And which is Yes. in today's Netflix era is like, पहले था कि आप पड़ोसी को नहीं जानते हो, अब तो you don't even know the person in the other room because they're on their phone Exactly. all the time. Exactly. So I think that is where the direction is heading. What is on your horizon, sir? On the Parivartan horizon, what are the next projects? Or I think I would like to work more on education. जी, लोग सोचते हैं मैं एफॉरेस्टेशन पे ज़्यादा वो है, वो तो होगा, वो तो हो रहा है, वो तो होते ही रहेगा, दैट इज़ वो तो न्यूक्लियर फिशन की तरह है, वो इट स्टार्टेड, अब वो ख़त्म नहीं हो सकता। बट एक आयाम है एजुकेशन का, बिकॉज इफ़ यू डोंट प्रिपेयर, आपको अपनी आर्मी भी तो चाहिए ना काम करने वाली, सिटीजन, जी। जो सिटीजन मूवमेंट है ना। सो आई थिंक कान्हा इज़ अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ दैट. Kana is a beautiful example of that, where people are trained in spirituality, people are trained in meditativeness and heartfulness, and at the same time, Kana prepares you for being a good human being and do good to the world. पहले तो अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है. You got to be selfish in that you first, आप अगर खुश हैं तो आप जो भी काम करेंगे पृथ्वी पे वो खुशी वाला ही काम होगा. So मेरे होराइजन पे तो एक ही चीज़ है, दैट्स एजुकेशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस. सो हम लोगों ने अपने टीम्स बनाई हैं जो स्कूल्स में जाके काम कर रहे हैं, एंड वी वांट टू कैच देम यंग, बिकॉज एक परिपक्व जो इंसान है, जो बिजनेस में है, नौकरी में है, सर उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बच्चा जो क्लास में बैठा है वो इज़ ऑल ईयर्स टू यू. Also, there's that concept of neuroplasticity, that your brain is still making its pathways. It's not hardwired. Exactly. अगर उसको हम थोड़ा कुछ हैमरिंग कर सकें, so you are preparing it for the next generation. And one thing I would like to share over here कि जैसे आपने अभी कहा कि हमारा होराइजन पे क्या, एक तो हो गया फॉरेस्ट में काम करना, एक हो गया डिग्रेडेड लैंड्स पे काम करना, एक हो गया वाटर एंड पॉन्ड्स पे काम करना, वो ठीक है, वो तो बाहर का हो गया. अब जो आप होराइजन की आपने बात करी, तो हम अपनी टीम्स में अभी हमारा जो मंथन चल रहा है वो यही है, जो पॉपुलेटेड एरियाज, अर्बन स्पेसेस हैं, अब वहाँ कैसे काम करेंगे. ठीक है, कम्युनिटी, सो कम्युनिटी से क्या करवाना चाहते हैं. आई फील, और मैं ये इन चीज़ों को वर्ड्स में डाल सकता हूँ, बिकॉज येस्टरडे आई सॉ योर मेगा नर्सरी ऑफ 120 acres. द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया एंड थ्रू आउट द प्लानट वुड बी, और ये चीज़ मैं क्योंकि अभी यूरोप टूर पे भी था तो वहाँ भी मैंने यही चीज़ देखी. द डिबेट, द एनर्जी, द एक्शन हैज़ मूव्ड फ्रॉम हार्डकोर old growth forest areas. Nurseries will be the next big thing in the coming, क्योंकि charity begins at home. अभी हम फैमिली की बात कर रहे थे, हर इंसान के पास जंगल नहीं है, हर इंसान के पास घर तो है जी. अब आप घर में, आपने भी कुछ प्लांट्स लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हर इंसान 20 से 40 पौधे लेके अपने घर में रखना शुरू कर देगा, एक नया रेवोल्यूशन यहाँ पर आने वाला है. एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि हम लोग हर घर नर्सरी, हरियाली होम्स करके हम लोग कैंपेन्स चलाते हैं नॉर्थ इंडिया में. सो हमारा पूरा फोकस ये है कि जो हाउसवाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड पीपल हैं, उनको हम कैसे इस मूवमेंट में लेकर आ सकें. अब उनको तो जिसको आर्थराइटिस है, जिसके
घुटने में पेन है, आप उसको कहो कि जंगल में जाके आइए और वहाँ पर काम कीजिए, वो जी, not पॉसिबल नहीं है। possible. लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट थिंग। वही वाली बात है, आज क्या चीज़ पॉसिबल है? आज उसके लिए पॉसिबल है कि वो अपने नर्सरी से गमले खरीद लाएगा, फिर अपने वो जो किचन में से उसके सीड्स होंगे वो उसमें डालेगा, वो अपनी मेथी, धनिया, पुदीना उगाएगा, छोटा सा किचन गार्डन का एक कॉर्नर रखेगा, अपना फूलों का एक कॉर्नर रखेगा, शायद कैक्टस का एक कॉर्नर रखेगा, सकुलेंट्स का रखेगा, और उसमें अपना मज़ा लेगा। तो वो फिजियोलॉजी पे भी काम करते हैं प्लांट्स, वो आपके साइकोलॉजी पे भी काम करते हैं। एंड बेसिक चीज़ आपको समझनी है, अगर हम एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं, सारा खेल तो द एरिया कवर्ड बाय लीव्स का है, क्लोरोफिल। जी जी एज आई बिल्कुल ऑलवेज से, क्लोरोफिल इज गॉड, जी यू नो। सो फोटोसिंथेसिस का खेल है, सारा खेल तो फोटोसिंथेसिस का है। अगर आप वो चीज़ वहाँ जंगलों में नहीं रिक्रिएट कर सकते, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। सो भाई, अगर उठ के आप घर से वहाँ नहीं जा सकते, तो लेट्स डू इट राइट हियर, लेट्स डू इट राइट हियर। यस तो आप अपने रूफटॉप गार्डन्स बनाइए, बिल्कुल आप अपने छोटे छोटे पॉकेट फॉरेस्ट बनाइए रूफटॉप्स पे। RWAs जो हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अच्छे अच्छे जो रो हाउसेज हैं, वहाँ पर आप नेदरलैंड्स जाइए, इंग्लैंड जाइए, आप जर्मनी जाइए, आप इतने सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं, इतने प्यारे ट्री पार्क्स हैं, आपको जंगल जाने का मौका ही नहीं मिलता। वहाँ पर नेचर रिजर्व्स बोलते हैं। जी तो जी 4 एकड़ का लैंड लेके कम्युनिटीज़ जो हैं आपस में ही पैसे डाल के, प्यारा सा पॉन्ड होगा, वहाँ स्वॉन्स घूम रहे हैं, वहाँ बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, वो है। व्हाई कांट वी डू दिस इन आवर कंट्री? वी शुड डू दिस इन आवर कंट्री। सो वी नीड टू, ये जो सारा फोकस वो कहीं दूर किसी जंगल में, और हर चीज़ का एक फोकस जो है टाइगर और एलिफेंट पे है, लेट्स ब्रिंग इट टू द सिटीज़, let's bring that thing, the whole movement of conservation and nature and environment and species and everything, let's bring the pollinators के लिए आप शहरों में काम कर सकते हैं। आप फूल, जी, जी। जो आपको फूल चाहिए, नेक्टर वाले चाहिए, आपको फ्लावरिंग जो चाहिए, वो तो आप अपने गमलों में भी कर सकते हैं। सो बिल्कुल। आई थिंक this is going to be a new shift, it's going to be a paradigm shift where urban spaces are going to lead the way. आपके मुंह में घी शक्कर as they say. let's hope this comes about and Yes, yes. और एक चस्का भी होता है when you see the thing grow, no? When you see Yes, something yes, that you planted and you see yes. that leaf come out. So I think आपका जो नाम पड़ा है, you mentioned that it गुरुजी ने आपका प्रेम परिवर्तन नाम रखा। जी 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 जी। And I have a friend here, वो अभी यहाँ नहीं है, वो डेनमार्क में है, डेनमार्क के हैं, रॉबर्ट ग्रांट। He was also in a monastery और उनका नाम गुरुजी ने दिया था गंभीरानंदा, स्वामी गंभीरानंदा। अच्छा। But he was definitely not true to his name because we laughed more than I've laughed with anybody. I've laughed with Robert whenever Right, he's here. right. But I think for you the name is very very apt. Yes, sir. Prem Parivartan. जी जी। Because that comes out when we speak to you, and of course your work speaks for itself. Prem Parivartan. Thank you so much. And I hope we can take this forward and you keep coming to Kanha. It's Oh, been- I will always be. it's This is such an something- honor. In fact, I'm so lucky, I'm so fortunate that I landed up in Kanha, and I wish to come here again and again because हम लोग भी काम करते करते थक जाते हैं सर, हमें भी कुछ नरिशमेंट चाहिए होती है, and this is a beautiful energy field where we feel very relaxed when we come here. Thank you so much for taking the time out. It has been an absolute honor and pleasure to be with you. Thank you so much. Thank you for tuning into this episode of KanaCast. Please follow and subscribe to KanaCast on Spotify, YouTube, and Instagram. Until next time, woof woof.